है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है यूनिट 4 की, यूनिट 4 में डिफिकल्टी आ रही है, देन ओनली ऑटो अटेंड दिस लेक्चर। अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है, आपको यूनिट 4 अच्छे से आ रहा है, सो नो नीड टू अटेंड दिस लेक्चर, ठीक है, क्योंकि इट इज जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू निराली। ओके, और आपको मैंने शायद पहले ही बोला कि स्टिक टू द निराली क्वेश्चंस ओनली। ओके, आपको भी पता है कि वहां पे अदर देन निराली भी क्वेश्चंस वहां पे आने वाले, बट क्या होता है कि एट द मैथ्स में अगर आप सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट इज इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट। ओके, उसके बाहर जाके कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व किया, टोटल 5 और 6 केसेस, अगर आपने वो सारे केसेस कवर किए, सो उतना ही आने वाला। आगे बस आपको वैल्यू चेंज होगी, फंक्शन चेंज होगा, दैट यू कैन इजीली अटेंड इन फाइनल एग्जाम आल्सो, ठीक है। इसलिए अलग अलग, यस यस, आई ऑलरेडी स्टार्टेड, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। अब इसके आगे अगर कोई वेटिंग में रहता है ना, तो आप मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म करो, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट। ओके, इनिशियली भी थोड़ा सारे स्टूडेंट आते समय टाइम जाएगा। सो if r bar of t is a position vector of a point, okay, on a curve where t is a scalar variable, then what this dr bar by dt represent? Okay, what this represent? Yes, it's a tangent vector. Okay? Tangent vector. And if it is a position vector of a particle moving along a curve, so it simply means it's a displacement. Okay, then the derivative of displacement is actually velocity. Velocity. dr bar by dt is velocity. The double derivative, it's actually the acceleration. Okay, the definition of acceleration. So it's a trivial question. Okay, next is what we have given the r bar. Okay, we have to calculate r cap. Okay, so in notation में आपको पता होना चाहिए, this is the unit vector, and definition of unit vector, that is r cap is equal to that vector divided by its modulus. This is the definition of unit vector. Okay, so here that vector is r cos theta plus r cos theta I bar plus theta j bar divided by the modulus of this, that is the modulus of the coefficient square, that is r square cos square theta plus r square sin square theta. You can take r square common, that modulus of r square common, and modulus of r square become r, that r can cancel with the numerator, sin square cos square become 1, so at the end you will get only this numerator, that is cos theta I bar plus sin theta j bar, that is option A, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस वैल्यू चेंज, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। वैल्यू चेंज होगी, आर बार की जगह पे कुछ भी वेक्टर वहां पे आ सकता है, इट में भी अ कांस्टेंट वेक्टर, इट में भी अ वेरिएबल वेक्टर, ठीक है, बट आपको यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करना है वो वहां पे समझ में आना चाहिए। We have given the we have given the values of x, y, z. That is, x is it's actually the values of position vector. Okay, or simply the coefficients. Okay, so x value is t square plus 1, y value is 4t minus 3, and z value is 2t square minus 60. Right? And we have to calculate the tangent vectors to this curve. Okay, so this actually in a random point on the curve. This is actually in a random point on this curve. Okay, how you calculate the position vector corresponding to this curve? पहला क्वेश्चन क्या, ये क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कर्व के ऊपर, आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पहले पोजीशन वेक्टर। ओके, x I cap plus y j cap plus z k cap, that is nothing but x I bar plus y j bar plus z k bar, ये याद रखो, this is actually the position vector. Okay, and now just put the value of x, y and z. Okay, so that is t square plus 1 I bar, correct. Next is 4t minus 3 j bar, and then next is 2t square minus 6 k bar. And now you have to calculate the tangent. Okay, so if we have given the position vector, that is r bar, then tangent is just the derivative. So dr bar by dt gives you the tangent. Okay, so what is the derivative of this?
क्या आपका डेरिवेटिव? 2t I bar plus 2t I bar, then it become 4 4j bar j bar, plus then 4t minus 6. यहाँ पे 60 है, सॉरी यहाँ पे 60 है, so it is actually a 40 and minus 6, so 40 minus 6 k bar. Okay, and now just calculate this dr bar by dt at t equal to 1, that is your first value, and just calculate this dr bar by dt at t equal to 1. तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है. Now tell me which option is correct. आप साइड बाय साइड सॉल्व करो, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आप साइड बाय साइड सॉल्व करो, या आप जंप करो स्टेप में, मतलब या भी मैं इन जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इतना कुछ लिखना नहीं है वहां पे, आप अपने हिसाब से डायरेक्टली सॉल्व करो. आपका ऑप्शन रेडी रखो, साइड बाय साइड आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी जल्दी जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है, ओके, यस. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी. बी. ठीक है, 1 मिनट अगेन. ओके, हाँ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जंप करना है इसके आगे. ठीक है, शायद अलग अलग होगा, या ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है द टेंजेंट वेक्टर. ठीक है, तो अभी आपको जंप करना है. आपको पता है पहले आपको आर बार लिखना पड़ता है, बिकॉज एक्स वाई जेड पॉइंट गिवन है, तो वहां से पोजीशन वेक्टर क्रिएट करना पड़ता है. उसके बाद आप डी आर बार बाई डी टी कैलकुलेट करते हो, दैट इज नथिंग बट एक्स का डेरिवेटिव इंटू आई बार, वाई का डेरिवेटिव इंटू जे बार, एंड जेड का डेरिवेटिव इंटू के बार. तो अभी आप डायरेक्ट लिखो, इसके आगे आपको पता भी कैसे जाना है. तो डी आर बार बाई डी टी इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज माइनस ए साइन टी इंटू आई बार, अभी जंप करना है, प्लस द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, that is a cos t into j bar, the derivative of z with respect to t, that is a tan alpha into k bar. Now just put t equal to pi by 4, just calculate this value at t equal to pi by 4, that will be your final answer. Okay, so which option is correct? A. A or B? A. Sin pi by 4 is 1 by root 2, so that first sign is minus, cos pi by 4 is 1 by root 2, second sign is plus, and यहाँ पे कुछ पुट होने नहीं वाला है because here t is not present. ठीक है, so option A is correct. ओके, तो अभी ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप देखो, इन बिटवीन गैप है, मतलब 10 11 वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, तो वो मैंने स्किप किया, मैंने वो यहाँ से स्किप किए. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ हियर वी हैव गिवन द r bar, okay, or you can treat it as a displacement. Okay, now from this you have to calculate the velocity and acceleration. ठीक है, क्या आती है? velocity is just the first derivative, that is dr bar by dt, that become your velocity, and we have to calculate this value at t equal to 0, and double derivative, that is d2 r bar upon dt square, it becomes the acceleration. I think ये आप कर सकते हो. बोलो फर्स्ट का. So the first derivative is minus, and here you have to consider as the derivative of log of t square plus 1 by 1. मैं बस क्या कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव ले रहा हूँ यहाँ पे. e raised to minus t का डेरिवेटिव माइनस e raised to minus t, सेकंड का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, दैट इज 2t, माइनस tan का डेरिवेटिव sec square t. Now calculate this value at t equal to 0. So I think it become minus I bar, ये 0 बन जाएगा, ये सॉरी ये रह गया ना j, ये k, so it is just minus k bar. So I bar minus k bar, दो ऑप्शन में मैच हो रहा है. Now let's come to this. एक और बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, so that become now plus e raised to minus t, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में ये प्लस बन जाएगा. यहाँ पे u अपॉन v का रूल आपको प्रॉपर यूज करना है. So that will be v square, correct, v into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, which is 2t. ठीक है, into that j bar as it is, and last में sec square का derivative, what is that? It's like x square, so 2x multiply by 2x multiply by derivative of x, that is the derivative of sec t, which is again sec t into tan t. तो ये ऐसा आता है, sec square t का डेरिवेटिव, पहले 2 sec t
multiply by derivative of sec t, which is sec t into tan t, so that become 2 sec square tan t. Now again put t equal to 0, then you can see that final answer. Here again you have to write here I bar, so that become I bar. ये क्या होगा, अभी आप t इक्वल टू 0 पुट करो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये तो 0 बन जाएगा, ये t 0, तो यहाँ पे आई थिंक ओनली 2 आने वाला है, सो प्लस 2j बार, नीचे का भी 1 हो जाएगा, एंड tan 0 0 होता है तो इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी. एंड इन अ सिमिलर वे यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 16. अभी आपको डायरेक्टली ये स्टेप लिखनी है ना, बस डेरिवेटिव लेना है 3t square 2t and 1. Then you have to just put t equal to 1, you will get that first vector. Take the one again, put t equal to 1, you will get that second vector. So I hope you can calculate that. किसने किया ये सॉल्व? किया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये सिमिलर है इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, वी हैव गिवन अ पॉइंट एक्स वाई जेड, तो पॉइंट गिवन है एंड आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट कैलकुलेट करना है. बेसिकली आपको पहले टेंजेंट एट t इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना होगा, आफ्टर दैट टेंजेंट एट t इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना होगा, एंड देन वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट्स. तो आपको पहले पता होना चाहिए हाउ यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर. सो इफ u bar is my first vector, v bar is my second vector, what is the formula to calculate the angle between these two vectors? That angle cos theta equal to their dot product divided by their product of magnitude. Modulus. ठीक है, सॉरी modulus. ठीक है, सिंपली थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, नाउ अभी आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको भी, u बार कैलकुलेट करना है एंड v बार. जंप जितने जल्दी मतलब जंप करना ही सीखो तो ही विद इन दैट टाइम यू कैन कंप्लीट योर पेपर. ओके, तो यहाँ पे पहले क्या आता है, t का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ टेंजेंट है बराबर, करेक्ट. t का डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू आई बार. नेक्स्ट इज व्हाट, 2t आने वाला है, करेक्ट, बट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज t इक्वल टू 0 पुट करना है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 1 बाय 1 सॉल्व करो. ठीक है, नेक्स्ट t क्यूब का डेरिवेटिव वो क्या आने वाला है, 3t स्क्वायर. बेसिकली योर ये r बार बाय dt, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ t विच इज 1 इंटू आई बार प्लस 2t इंटू जे बार. लिख लेता हूँ, चलो 3t स्क्वायर k बार. Now just put t equal to 0, you will get this value to be 0. And now put t equal to 1, you will get 1 plus 2j bar, sorry I bar plus 2j bar plus 3k bar. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस. तो ये मॉडुलस होगा 1 और ये मॉडुलस क्या होगा, 9 plus 1 10 14 ना, यस 14 अंडर रूट ऑफ 14. ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 इंटू मॉडुलस ऑफ 14. What is the dot product of these two vectors? का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोएफिशिएंट वाइज मल्टीप्लाई करना है ना. i का यहाँ पे 1 है, i का भी यहाँ पे 1 है, तो 1 आने वाला है. नेक्स्ट j का 0, j का 2 0 आने वाला है, k का 0, k का 3 0 आने वाला है. सो दैट आंसर इज 1 अपॉन रूट 14. सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 14. सो आई थिंक दिस ऑप्शन. ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्रिएट भी किए जा सकते फाइनल एग्जाम के लिए. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आपने सॉल्व किया ना, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है. ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, विद इन 2 मिनट्स यू कैन इजीली कंप्लीट दिस. ओके, नेक्स्ट भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे t1 बार गिवन है, ओके, t2 बार गिवन है. दिस टू आर द टेंजेंट्स टू दिस कर्व एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2. आपको डायरेक्टली एंगल कैलकुलेट करना है. तो डायरेक्टली आपके पास ये t1 वेक्टर गिवन है, t2 वेक्टर गिवन है, आपको इन दोनों में से एंगल कैलकुलेट करना है. ओके, ये बस कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने दी है. तो ये कैलकुलेशन उन्होंने किया है वहां पे. ओके, एक्स वाई जेड के लिए टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल टू 1 क्या आता है, t1 बार. टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल टू 2 क्या आता है, t2 बार. सो जस्ट कैलकुलेट एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, कैन एनीवन टेल मी क्या आ रहा है इसका आंसर, अगर आपने किया है तो लास्ट. ओके, cos inverse of 5 by root 36, 3 into root 6. ठीक है, तो डायरेक्टली आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ओके ना, ठीक है. तो ये एंगल बिटवीन के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है. एक तो टेंजेंट्स इन बिटवीन टेंजेंट आपको एंगल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है.
नेक्स्ट डायरेक्टली दो वेक्टर गिवन रहेंगे, उन दोनों में आपको एंगल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट हियर वी हैव गिवन आर बार, ठीक है, where a and b are constant, you have to calculate the double derivative of this r bar at t equal to 0. What is that? Double derivative. So आपको बस दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। So your first derivative is dr bar by dt is a is the constant, keep that value as it is. Now यहाँ पे u into v का रूल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड into derivative of first into this I bar as it is, plus b first function derivative of second plus second into derivative of first, ठीक है, into that j bar as it is. One more time we have to take the derivative. So d2 r bar upon dt square is equal to a. Again the first function derivative of second plus second into derivative of first, यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t into this I bar plus b first function derivative of second plus second into derivative of first, यहाँ पे derivative of sin t is cos t into j bar. Now just put t equal to 0. Just put t equal to 0 here, ठीक है। डायरेक्टली ऑप्शन को टिक करो। So when I put t equal to 0, ये टर्म 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, cos 0 is 1. So 2b j bar. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट भी सिमिलर है, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज योर फाइनल आंसर? अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हो ना, cos हाइपरबोलिक t की जगह पे क्या आने वाला? माइनस माइनस आर बार cos हाइपरबोलिक t। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन सुनो। आपको आर बार को दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो cos हाइपरबोलिक t को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करते हो, व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस cos hyperbolic of t, तो उसके जगह पे क्या आने वाला है फिर से? cos हाइपरबोलिक t आने वाला है ना। सो व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस टू टाइम्स, बेसिकली यू विल गेट d2 r bar by dt square is equal to a bar cos हाइपरबोलिक t एज इट इज, क्योंकि cos हाइपरबोलिक में माइनस बार नहीं आता। cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक होता है, sin हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक होता है। यहाँ पे भी वही होगा, sin हाइपरबोलिक का फर्स्ट डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का नेक्स्ट डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x. So again you will get here sin hyperbolic t. That is nothing but r bar, ठीक है। So your answer is r bar, not minus r bar, ठीक है। अगर ये हाइपरबोलिक नहीं होता ना, तो मे भी आपका आंसर उस केस में करेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये सारे निगेटिव निगेटिव आ जाएंगे। अगेन ओके, उस केस में cos का क्या आता है, पहले माइनस साइन उसके बाद cos, तो उस केस में वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से देखो कि वहां पे क्या गिवन है। ओके नेक्स्ट, थोड़े वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएंगे इसके आगे। Now we have given the acceleration vector, so this is one vector you can treat as, okay, is constant. Now this vector is normal, okay, to the position vector. Basically here we have given two vector. One vector is this, I will denote directly लिख लेता। One vector is this minus I bar plus 6m k bar. This is your one vector. I will call it as say u bar for writing purpose, and your second vector is I bar and plus mk bar, and here this u bar and u bar is normal to v bar. Means what? Normal means they are Dot product is equal to 0. product is 0. so that implies their dot product is 0. Okay, so just use this condition. Okay, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, कोएफिशिएंट वाइज प्रोडक्ट, -1 into +1 become -1 plus 6m into m become 6m square equal to 0. That implies 6m square equal to 1. That is m square equal to 1 by 6. That is m equal to plus or minus 1 by 6. ठीक है, अंडर रूट ऑफ √6, सॉरी, ठीक है। तो ये नॉर्मल वर्ड आता है तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हियर वी हैव गिवन आर बार, ओके, हाँ ये थोड़ा टफ है, ठीक है। हाँ, तो वन बाय वन कर लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट डी आर बार बाय डी टी, तो डी आर बार बाय डी टी दैट विल बी ए बार साइन हाइपरबोलिक टी
ओके, प्लस बी बार साइन का क्या आएगा, कॉस, ठीक है, बी बार cos hyperbolic t. Now calculate the double derivative. So d2r bar by dt square, that will be a bar. Now take one more derivative, that is cos hyperbolic t, सेम ही आने वाला है वो, प्लस b bar sin hyperbolic t. ओके, अभी कैसे करोगे आगे आप, नाउ टू जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्टली भी हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए बार साइन हाइपरबोलिक टी, ये ओके, इज देयर एनी अदर वे, आपके पास बोले शायद मेरा वे भी लेंथी हो सकता है। यस, हाउ यू डू दिस, एनीवन, किसने किया है सॉल्व, किसने सॉल्व किया है इसको, We can find normal vector to both these vectors. how you do that, what is that normal vector, ठीक है, ओके, We can do directly cross product. हाँ, तो मुझे वही अप्रोच लग रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि अगर आपके पास कोई अदर है, ठीक है, सो आई थिंक द ओनली वे हियर वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली, सो बी बार क्रॉस cos hyperbolic t, now cross with the second vector a bar cos hyperbolic t, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, b बार sin hyperbolic t, ओके, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। हाँ, अभी पहले आप बोलो, जैसे आपका रेगुलर प्रोडक्ट होता है वैसे ही जाना है, हाँ, सो दिस विद दिस, इसमें ए बार क्रॉस ए बार आने वाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार क्रॉस ए बार, प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर, दिस इज माय क्वेश्चन, 0, ये याद रखो, ओके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, मतलब अगर उन दोनों में वो दोनों सिमिलर वेक्टर आते हैं तो उन दोनों में एंगल 0 होगा एंड साइन 0 0 आता है, ये याद रखो, ये भी इससे भी आप याद रख सकते हो, ए बार क्रॉस ए बार इज ऑलवेज 0, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है या पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, सो दिस विल बी 0। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, दिस ए बार क्रॉस विद दिस, सो ए बार साइन हाइपरबोलिक टी इज क्रॉस विद बी बार sin hyperbolic t. So right now this hyperbolic t are actually the scalar values, ठीक है, now give the plus sign, come to the next, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, so b बार क्रॉस a बार, ये तो मैं लिख लेता हूं, b बार cos hyperbolic t क्रॉस विद a बार cos hyperbolic t, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, b बार क्रॉस b बार आने वाला है, दैट इज अगेन 0, टू सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो इतना ही आपको मिलेगा। अभी यहां से आप क्या कर सकते हो, दिस आर द स्केलर, ओके, तो हर एक वेक्टर से आप वो स्केलर बाहर लेके आ सकते हो, तो साइन हाइपरबोलिक टी बाहर आ जाएगा, यहां से टेक अनदर कलर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, यहां से साइन हाइपरबोलिक टी बाहर आ जाएगा, यहां से भी साइन हाइपरबोलिक टी बाहर आ जाएगा, ओके, तो फाइनली यहाँ पे आउटसाइड क्या होने वाला, उन दोनों का प्रोडक्ट, दैट विल बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, ठीक है, ये वेक्टर में होता है, आपने 11th 12th में देखा होगा, ठीक है, इनटू दिस ए बार एज इट इज, करेक्ट, नाउ प्लस सेम लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है, यहां से cos हाइपरबोलिक टी बाहर आ जाएगा, स्केलर यू कैन डायरेक्टली टेक आउटसाइड, यहां से भी cos हाइपरबोलिक टी बाहर आ जाएगा, सो फाइनली हियर यू विल गेट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इनटू बी बार। आई थिंक शायद आपको ये रिजल्ट नहीं पता है, इसलिए मैं दे देता हूं आपको डायरेक्टली, एक हाइपरबोलिक का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दोज हु डोंट नो यू कैन नोट डाउन दिस रिजल्ट, ठीक है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा या स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, फाइनल एग्जाम में, ओके, या आपको मैं एक मतलब हिंट देके रखता हूं, फाइनल एग्जाम में आप एक पेजेस पे सारे फॉर्मूलेज लिखो, ठीक है, वो पेज आप सामने ही रखो, ठीक है, तो यू कैन इजिली, अगर इन केस अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो आपके सामने तो होगा, बट उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलेज एक पेज पे कलेक्ट करने होंगे, दैट इज द ओनली वे फाइनल एमसीक्यूज एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज है, ऊपर नीचे अगर हो जाता है, सो इट्स बेटर टू चेक वंस फ्रॉम दैट शीट,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कहीं पे नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपको ये एक एक इसी एक एमसीक्यूज में आपने ये यूज किया है। ठीक है, ऐसे सारे फॉर्मूले जब जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, सारे फॉर्मूले आपको कलेक्ट करते जाना है। ओके, नाउ यू हैव टू यूज दिस रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे लिखने में एक मिस्टेक हो गई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। If I take that sin square t outside, what is in the bracket? क्या मिलेगा यहाँ पे? a A बार into B. b बार, ओके, एंड प्लस यहाँ से cos hyperbolic, यहाँ से भी cos hyperbolic, that will be cos hyperbolic square t, and in bracket you will get b bar cross a bar. Okay, now I have to change this a bar cross b bar. मुझे a bar cross b bar को, क्योंकि कॉमन आना चाहिए ना, तो a bar cross b bar को मुझे b bar cross a bar में चेंज करना है। तो व्हाट इज दैट रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a bar cross b bar एंड b bar cross? माइनस टाइम्स होता है ये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप चेंज करते तो माइनस बाहर आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू, इफ आई रिवर्स दिस, देन यू विल गेट cos hyperbolic square t minus sin hyperbolic square t in a bracket, and here you will get b bar cross a bar. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, and your final answer is this. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इतना अगर करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ये भी याद रखो कि रेगुलर क्रॉस प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग अ डिटर्मिनेंट मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, नाउ इससे पहले लेट मी रिवाइज द फॉर्मूला। व्हाट इज और हाउ यू कैलकुलेट u बार डॉट v बार क्रॉस w बार? दिस इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हो? Scalar triple product स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी गुड। एंड हाउ यू कैलकुलेट दिस? by taking इट इज जस्ट द डिटर्मिनेंट, determinant. करेक्ट। उसमें फर्स्ट रो में, डिटर्मिनेंट। हाँ, फर्स्ट रो में क्या आता है? u बार के कोएफिशिएंट, दैट इज u1 u2 u3। सेकंड रो में v बार के कोएफिशिएंट v1 v2 v3। अभी इसमें ये साइन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आगे भी समझ में आएगा। मतलब ये फर्स्ट टू टर्म को अगर आप ब्रैकेट करते हो तो उस टाइम पे कैसे करना है। ठीक है, नाउ v1 v2 v3, देन नेक्स्ट इज, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं, वो क्रॉस में, सॉरी, देन w1, यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट का रिजल्ट है। अगर इंटरचेंज भी हो भी जाता तो इशू नहीं है। ठीक है, ओके, सो w1 w2 w3। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, नाउ इफ आई यूज दिस डेफिनेशन, here we have given r bar which is equal to t into I bar plus 2t into j bar plus t square into k bar, and then next is dr bar by dt, that is, just take the derivative, I think it is I bar plus 2j bar plus 2t k bar, then one more derivative, d2r bar dt square, and I think this is now it is 0, it is again 0, and it is just a 2k bar. Okay, now can you tell me what is this? So it is actually a determinant of t, 2t, then t squares, then 1 2 1 2 2t, है ना, and then 0 0 2. So what is this determinant? ये wrong क्यों आ रहा है? क्या मिस्टेक किया हमने? नहीं, हाँ ठीक है, 1 है। 0 आ रहा है, 0 हाँ, what is this determinant? 0 It is 0. ओके, वो 40 कैंसिल हो रहा है क्या? ठीक है, ओके, यू कैन चेक दिस। हाँ, अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आपको ज्यादा कुछ प्रूफ के पीछे, या आई थिंक मैंने पीडीएफ में या पीपीटी में है, इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर डायरेक्टली। सो इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ r bar and their derivative is 0, then r bar has, yes, magnitude, constant magnitude, and there is a similar result which is there in book. मैं आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, शायद उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में भी। इफ r bar क्रॉस dr bar by dt equal to 0, in that case that r bar has, रीड किया गया किसी ने रिजल्ट, then r bar has constant direction,
सॉल्व एग्जाम्पल भी आप देखो, वही से क्वेश्चन क्रिएट होने वाले। जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसके अगर लेंथ ज्यादा नहीं है ना, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू। ओके, सो वो भी आप एक बार गो थ्रू करो। कोई भी फैकल्टी कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा उस हिसाब से आपको सोचना है। तो उस केस में भी आप याद रखो। सो दिस इज फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। Okay, an electron moves in a moves such that its velocity is always perpendicular to radius vector. Okay, velocity is perpendicular to radius vector. This is your radius vector, and velocity is perpendicular to radius vector. So that will be circle. Okay, straightforward one mark के question है that you have to remember directly. और next, अब इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एक टेबल याद रखना है। मैं आपको दिखाता हूं बस क्विकली। इट इज देयर इन पीडीएफ आल्सो। पीडीएफ में है क्या? पीडीएफ ओपन नहीं किया। हाँ, ये इन सारे रिजल्ट के लिए आपको ये एक टेबल याद रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस पे ही सारे रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप देखो मैं वन बाय वन रीड भी करता हूँ क्योंकि आपको इमीडिएटली अब इसके आगे सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ यू बार प्लस और माइनस वी बार? तो रेगुलर जैसे होता है वैसे आपको जाना है। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ यू बार डॉट वी बार। तो ये क्या होता है? यू बार इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू वी बार। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? यू कैन चेंज दिस सीक्वेंस आल्सो। सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू फर्स्ट। ठीक है, यू बार क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डी यू बार बाय डी टी इंटू वी बार। ये भी एक रिजल्ट है जो मुझे इमीडिएटली यूज करना है, सेकंड रिजल्ट। Okay, derivative of scalar into vector. Derivative of scalar into vector. It's again a regular formula. d phi by dt into u bar plus phi into du bar by dt. Correct? Okay. Next is this is the vector triple product. So the derivative of product आपको वन बाय वन वेक्टर लेके जाओ। तो फर्स्ट इसमें u बार का डेरिवेटिव प्लस सेकंड में v बार का डेरिवेटिव प्लस थर्ड में w बार का डेरिवेटिव। ये भी सिमिलर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी सेम आपको सीक्वेंस से जाना है। ओके, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इन दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन फर्स्ट स्टेप जस्ट राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस इन सेकंड स्टेप राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वेक्टर। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट्स। इनके ऊपर अभी आगे सारे क्वेश्चंस है। ओके, नाउ हियर द रिजल्ट इज व्हाट? वी हैव टू यूज द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d by dt of u bar dot v bar cross w bar. And what is your result? Your result is du bar by dt dot v bar cross w bar plus u bar dot dv bar by dt, yes, cross w bar plus u bar dot v bar cross dw bar by dt. ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। नाउ जस्ट यूज दिस रिजल्ट। सो दिस इज इक्वल टू dr bar by dt dot with remaining two terms dr bar by dt cross with d2 r bar by dt square. Okay, u plus sign. Now take this derivative of second term remaining as it is, r bar dot derivative of second. So d2 r bar by dt square multiply by d2 r bar by dt square. Now just take the derivative of third term, remaining two as it is. So r bar dot dr bar by dt, derivative of third become d cube r bar by dt cube. Okay, now tell me what is value of this first and why? What is value of this first? Why? In scalar triple product, if two vectors are similar, then their scalar triple product is zero because of determinant. Determinant में भी अगर दो रोज इक्वल आ जाते हैं तो determinant जीरो होता है। ठीक है, so now dr bar by dt, dr bar by dt, so two vectors are similar, therefore scalar triple product is zero. यहाँ पे भी zero because two vectors are similar. So what is remaining? That will be your final answer. R bar dot d2 r bar by dt cross d cube. I think हाँ C option correct है ना? ये गलती से मैंने रीड किया। Okay, this option is correct. Okay, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट भी आप याद रखो।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली पहले फॉर्मूला यूज करना है। दैट फॉर्मूला इज पहले क्या है, शायद डी यू बार, नहीं नहीं, ठीक है ये हो जाता है तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि प्लस साइन है, यू कैन चेंज दैट। ओके, सो यू बार क्रॉस डी वी बार बाय डी टी प्लस डी यू बार बाय डी टी क्रॉस वी बार। ओके, एक बार यू बार का, एक बार वी बार का, इन बिटवीन यू हैव टू गिव द प्लस साइन। ये इंटरचेंज भी आप ये फर्स्ट भी ले सकते हो, इसको सेकंड भी ले सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, सो दैट यू कैन इट इज इजीली इंटरचेंज दिस। नाउ if I just put the values of this v bar and dv bar by dt and du bar by dt, so that become, so u bar cross what is the value of dv bar by dt? dv bar by dt is w bar v bar, ठीक है, give the plus sign, now in bracket du bar by dt, du bar by dt is actually w bar cross u bar क्रॉस v बार। ओके, नाउ टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस, इसके आगे कैसे करोगे? मुझे फॉर्मूला चाहिए, बस मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला क्या है वो। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है? एक रिजल्ट मैंने शायद आपको दिया है। ओके, यू बार क्रॉस v बार, हाँ वी बार का, और इसको लिखते समय शायद मैंने नीचे ऐसे दिया है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड। इसको याद कैसे रखना है बोलो? हाँ, फर्स्ट विथ थर्ड इंटू रिमेनिंग, सो दैट विल बी सेकंड माइनस सेकंड इंटू जो रिमेनिंग है थर्ड। ठीक है, सो जस्ट यूज दिस रिजल्ट। हाँ, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा, फर्स्ट सिमिलर इस फॉर्म में, सो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट विथ थर्ड इंटू रिमेनिंग माइनस फर्स्ट विथ सेकंड इंटू रिमेनिंग, ओके वी बार। हाँ, अभी सेकंड के लिए तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है। ओके, तो मुझे मुझे मतलब वो जो ब्रैकेट आता है वो मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए, अभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। सो हाउ यू कन्वर्ट दिस थिंग, मेरा क्वेश्चन क्या, आप सुनो अच्छे से, हाउ यू कन्वर्ट दिस थिंग इन दिस फॉर्म? वो कर सकते हो, या सिंपली आपको पता ही है ना वो एक रिजल्ट क्या, कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार, तो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, यू कैन यूज एनी रिजल्ट, आपको जो पता आप वो यूज करो, बट मैं इस फॉर्मेट में लेके आता हूँ बस जो मुझे इमीडिएटली दिखाई दे रहा है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, मैं माइनस कर देता हूँ सो दैट आई कैन राइट दिस। नाउ इसको एक ए बार ट्रीट करो, इसको एक बी बार ट्रीट करो, तो ए बार क्रॉस बी बार गिवन है, मुझे बी बार क्रॉस ए बार लिखना है, तो माइनस में बाहर ले रहा हूं, देन आई विल टेक दिस वी बार क्रॉस डब्ल्यू बार क्रॉस यू बार। ठीक है, अभी जगह ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज समथिंग हियर, इसको मैं इरेज करता हूँ, इस यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो फाइनली इट बिकम, फर्स्ट का लिख लेता हूँ पहले, यू बार dot with v bar into this w bar as it is, now minus sign u bar dot with w bar into this v bar as it is। अब ये माइनस साइन के अंदर सब कुछ चल रहा है क्योंकि ये माइनस साइन है, सेम रिजल्ट यूज करना है माइनस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट विथ थर्ड, सो v बार विथ थर्ड u बार, को v और u में डिफरेंस देखो समझ में आ रहा है तो, then minus sign first with second, so first with second into u bar। अभी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, बोलो क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ, यहाँ पे w बार है, यहाँ पे w बार है, तो ये टर्म आपका, सॉरी ये डॉट है ना, बीच में क्रॉस हो गया, जस्ट 1 मिनट, ये इन बिटवीन सारा डॉट में। ठीक है, एंड नाउ can do this, so this u bar dot v bar is always equal to v bar dot u bar, तो dot product is commutative। okay, तो यहाँ पे इशू नहीं है, so this term directly cancel with this term and what is remaining, तो ये u bar with plus sign आता है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, u bar with plus sign माइनस v bar with minus sign,
u bar plus v bar minus, so option A is correct. Is this clear to everyone? ये समझ में आ रहा है सबको? ये रिजल्ट आप याद रखो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इफ इट इज देयर एनी अदर वे वो भी आप यूज करो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट, लेट मी टेक कलर. या हाँ, क्या गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो पहले आपको पता है डेरिवेटिव प्लस में सेपरेट होता है, सो दिस इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर क्यूब इंटू आर बार प्लस डी बाय डी टी ऑफ ए बार क्रॉस डी टू आर बार बाय डी टी स्क्वायर. अभी मुझे बस 1 बाय 1 बोलो कि कौन कौन से फॉर्मूला आपको यूज करने हैं. बोलो फर्स्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला बोलो बस कौन सा यूज करना है. आई विल राइट हियर पाई यू बार. वेरी गुड. तो फर्स्ट में पाई यू बार का फॉर्मूला आपको यूज करना है, यू कैन चेक फ्रॉम द पीडीएफ. सेकंड में डी बाय डी टी ऑफ यू बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला. ये रेगुलर फॉर्मूला, जैसे आपका रेगुलर डेरिवेटिव होता है वैसे ही जाना है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो उस हिसाब से मैं लिख लेता हूँ अभी. नाउ आई विल डायरेक्टली राइट इट हियर. सो इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन को वैसे रख दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस डी बाय डी टी ऑफ आर क्यूब इंटू सेकंड एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डी क्यूब आर बार बाय डी टी क्यूब. नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ए बार बाय डी टी इंटू सेकंड एज इट इज डी टू आर बार अपॉन dt square. Now, what is given? This a bar is constant. Means what? What is derivative of a bar? If a bar is constant, what is derivative of a bar? ये वैल्यू क्या आएगी? 0 ना? Because a bar is constant, so da bar by dt is 0. So this whole term is 0. Basically ये term आपका 0 होगा, ठीक है? And remaining things हम लिख लेते हैं. Write down the remaining things. So that final answer is equal to this r cube dr bar by dt as it is. What is derivative of r cube with respect to t? Anyone? r cube का derivative with Zero. respect to t. तो चेन रूल से जान, 0. 3r square नहीं dr नहीं, by sorry चेन रूल ये आप याद रखो, d by dt ऑफ से f ऑफ r, ये क्या होता है, पहले f का डेरिवेटिव उसके बाद r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है. दिस इज योर चेन रूल ना, ये आपने 11th 12th में लर्न किया है. अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहले आप f ऑफ r को r से डिफरेंशिएट करो, देन r को t से डिफरेंशिएट करो. दिस इज योर चेन रूल. यहाँ पे वही करना है, पहले r क्यूब का डेरिवेटिव आएगा विच इज 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t. ये क्रॉस नहीं है, वो लिखने की आदत है, ठीक है. एंड रिमेनिंग टर्म एज इट इज a बार क्रॉस d क्यूब r बार अपॉन डी टी क्यूब. सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आई थिंक दिस. क्या कुछ तो मिस हुआ है क्या? आर बार मिस हुआ है यहाँ पे, आर बार एज इट इज, ठीक है, ठीक है. सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो. नाउ नेक्स्ट, yes sir स्किप कर सकता हूँ, है ना. वी बार गिवन है, डेरिवेटिव लेना है, एक और बार डेरिवेटिव लेना है, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन जस्ट द डिटरमिनेंट. इट इज जस्ट द डिटरमिनेंट. कैन आई स्किप दिस? ये हो जाएगा आपसे, yes sir और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो टाइम ज्यादा जाएगा. एंड कितना और टाइम है हमारे पास? ओके, मैं कंप्लीट करने वाला, तो जितना टाइम जाएगा उतना जाएगा, ठीक है. नाउ आर बार इज दिस. नाउ वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, अब ये भी इजी है. इन दोनों का बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. हाउ यू डू दिस? कैसे निकालोगे आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट? डिटरमिनेंट से भी जा सकते हो. सो कैन यू टेल मी दैट डिटरमिनेंट डायरेक्टली? आई जस्ट वांट द वैल्यू ऑफ r bar dr bar by dt. हाँ, टेल मी इन फर्स्ट रो. फर्स्ट रो क्या लिखना है? नहीं, मुझे फर्स्ट रो में बोलो I क्या cap लिखना j है? cap आई जे, बस इतना ही. के, हाँ, yes sir ओके. नेक्स्ट, आर बार कोएफिशिएंट टी स्क्वायर
0 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डी आर बार बाय डी टी में ये 2t, इट इज 2 0, 10 1. एंड इसका आप बस निकालो डायरेक्टली, तो ये आएगा आई थिंक के बार, ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना, के बार टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट ना। देन टेक द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, के बार बाहर आ जाएगा वैसे भी, माइनस टी स्क्वायर डी टी, सो आई थिंक इट इज टी क्यूब बाय 3, so minus 1 by 3 k bar. This is your final answer. You can check this. ठीक है। Yes, sir. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, और भी डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका डेरिवेटिव, ऐसे सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, ओके, इस फर्स्ट सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में जो आपका टॉपिक है दैट विल बी, उसमें क्या क्या आने वाला है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर्मूलाज, आप चाहो तो अभी इमीडिएटली चेक करो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डेल फाई दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेड फाई, ठीक है, ग्रेड फाई दैट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, देन कर्ल ऑफ अ वेक्टर, देन उसमें दो टॉपिक रिलेटेड है, दैट इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, नेक्स्ट इज सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड, और क्या था इसमें, आई थिंक इतने ही है, ओके, इतने ही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो वन बाय वन हमें हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन देखना है, ओके। अभी फॉर्मूलाज में साइड बाय साइड यहीं पे रिवाइज करने वाला, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। सो दिस इज आवर सेकंड सेक्शन, इतना कवर करके हम स्टॉप करते हैं लेक्चर, इसमें भी और टाइम जाने वाला है, इसलिए टाइम में या यू कैन इजीली कवर, ठीक है। Maybe that this lecture will be extended more 30 to 35 minutes, उसमें शायद ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ फॉर अ लेवल सरफेस, सो दिस इज द स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन मतलब विदाउट आई बार जे बार के बार, ठीक है। सो इट इज अ स्केलर फंक्शन, द ग्रेड फाई रिप्रेजेंट, ग्रेड फाई मतलब डेल फाई, ये होता है ग्रेड फाई, ओके। सो इन जनरल व्हाट डेल फाई रिप्रेजेंट, यस, इन जनरल व्हाट डेल फाई रिप्रेजेंट, नॉर्मल वेक्टर। हमेशा याद रखो डेल फाई से आपको क्या मिलता है, एक नॉर्मल वेक्टर मिलता है, कहां पे, फाई सरफेस को, सो इट गिव्स यू द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई। अब चाहो तो वो लेक्चर सुनो, रिकॉर्डिंग प्रीवियस लेक्चर की, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेल फाई गिव्स यू नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई, ठीक है। सो इट्स अ नॉर्मल वेक्टर, इट इज देयर इन द ऑप्शन, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेल फाई, अभी ये हो गया तो यहीं पे फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं, what is a definition of del phi, tell me directly, what is value of del phi, I cap into dou by dou x. हाँ, phi को x से डिफरेंशिएट करो, ये इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये phi ऑफ दिस, आप मतलब ऐसे ओरली याद रखो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, phi को x से डिफरेंशिएट करो इनटू i बार, प्लस phi को y से डिफरेंशिएट करो इनटू j बार, प्लस phi को z से डिफरेंशिएट करो इनटू k बार, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ del phi, नाउ रिमेंबर दिस, ओके। कम टू नेक्स्ट, फॉर अ स्केलर फंक्शन, सो दिस del इज वेरी सिमिलर टू योर डेरिवेटिव ऑपरेटर, del जो ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, व्हाट इज del, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ del, वेरी गुड, डेबा x प्लस j बार डेबा by डेबा y प्लस k बार डेबा by डेबा z, सो इट इज एक्चुअली अ वेक्टर, याद रखो डेल आपका यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। सो दिस डेल, और इस ऑपरेटर, ऑपरेटर इसलिए क्योंकि डेबा by डेबा x आपको ऑपरेट करना होगा किसी वेरिएबल पे, देयरफॉर इट्स ऑपरेटर, ठीक है। सो डेल ऑफ फाई साई, ओके, डेल ऑफ फाई साई क्या होता है, एनीवन, इट्स सिमिलर टू डेरिवेटिव, तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि कौन सा आ सकता है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड का Option B. option B, it is similar to derivative, first function derivative of second plus second into derivative of first in a similar way. Now del of phi by psi similar to derivative, D, correct, okay. Psi square, psi into derivative of numerator minus phi into derivative of denominator, ठीक है। So this is your definition.
हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है, एफ बार इज वेक्टर फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू राइट द कर्ल ऑफ एफ बार. क्या होता है, व्हाट इज द नोटेशन फॉर कर्ल ऑफ एफ बार, व्हाट इज द नोटेशन फॉर कर्ल ऑफ एफ, डेल क्रॉस एफ बार. वेरी गुड. ठीक है, तो देखो नीचे कहाँ पे मैच हो रहा है, दिस इज योर डेल, दिस इज योर एफ बार, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको आ सकता है, द डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज, सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार क्या होता है, डेल डॉट एफ बार. नाउ रिमेंबर दिस. ठीक है, divergence and curl. Okay, next. Now magnitude of maximum directional derivative of a scalar point function in the direction is. बोलो. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसकी एक डायग्राम भी मैंने आपको दी थी. ठीक है, आई विल शो यू, तो और आपको एक पिक्चर इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, मतलब क्या रीड करना था अभी, ये है कि नहीं मुझे पता नहीं इसमें. हाँ, ये डायग्राम में उसका रीजन. ओके, डेल फाई गिव्स द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई इटसेल्फ. आप देखो, जैसे से आप ऊपर जाते हो ना, ओके, आपका ये मैग्नीट्यूड लेस होता जाता है. ठीक है, डेल फाई डॉट ए कैप, अब देखो ये मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस आपका कम होते जाता है. यहाँ पे ये डिस्टेंस है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया. जैसे आप आगे आगे जाओगे और आपका कम होता जाएगा. मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे आता है, व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई इटसेल्फ. Okay, so what this result tells you, the directional derivative has maximum magnitude in the direction of del phi itself, and that magnitude is actually the magnitude of del phi. ये रिजल्ट आप याद ही रखो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे भी आप देखोगे यहाँ पे. The directional derivative has maximum magnitude in the direction of del phi itself, okay, and that magnitude is magnitude of del phi. So ये सबसे important result है. Next, now what is given? We have given a del phi at some point, and what is the value of maximum directional derivative? कहाँ पे आती है आपको ये maximum value? del phi पे ही आती है. So del phi पे ही आपको क्या मिल जाएगी? The maximum directional derivative. And what is the modulus of this? What is modulus of this? इसका modulus क्या है? Under root of I bar का कोई square plus 1 square plus 3 square, that is under root of 11. इट्स अ मैग्नीट्यूड, सो इट्स नॉट अ वेक्टर. गलती से भी इसको टिक मत करो. इट्स अ मैग्नीट्यूड, मतलब वो रियल नंबर आने वाला है. ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 11 इज योर आंसर. नेक्स्ट, वी हैव गिवन आर बार एंड दिस इज आर. तो आर यहाँ पे स्केलर है, आर यहाँ पे स्केलर है. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल आर? तो इसके लिए एक रिजल्ट आपको याद रखना है, दोज हु डोंट नो. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ आर? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. What is definition of del of f of r? Yes, बोलो. Very good. F dash of r upon r into r bar. Okay, ये in general है. This is for any f of r. तो use this result only. So del of r, ऊपर आता है r का डेरिवेटिव which is 1, नीचे r into r bar. So that answer is r bar upon r. ठीक है, तो ये याद रखना है कि डेल किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, आर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, एक और फॉर्मूला डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का. ओके, दैट आल्सो वी नीड, अगर आता है तो वो ले लेता. ठीक है, नेक्स्ट, आपको चाहिए डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप. ओके, तो पहले डेल फाई कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज डेल फाई? आपको मैंने पहले बोला है कैसे करना है. डायरेक्टली फाई को एक्स से डिफरेंशिएट करना है. क्या मिलेगा? 1, तो इंटू आई बार. फाई को वाई से डिफरेंशिएट करो, इंटू जे बार. फाई को जेड से डिफरेंशिएट करो, इंटू के बार. नाउ यूनिट वेक्टर ए कैप, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ए बार अपॉन देयर मॉडुलस, सो दैट मॉडुलस इज अंडर रूट ऑफ रूट 3. ठीक है, नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. क्या मिलेगा ये डॉट प्रोडक्ट? फर्स्ट का विद फर्स्ट, सो 1 बाय रूट 3, प्लस सेकंड का सेकंड से अगेन 1 बाय रूट 3, थर्ड का थर्ड से 1 बाय रूट 3, that is 3 by root 3, and 3 by root 3 is what? Root 3. Root 3. So that answer is root 3. Next,
फाई गिवन है, स्केलर फंक्शन गिवन है, ठीक है, वेक्टर गिवन है, ओके, del phi at point, ओके, del phi at point इट्स परपेंडिकुलर टू दिस बी बार, वहां से आपको यम कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके, सो लेट लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट del phi, ओके, फाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, 2xm आई बार, ओके, प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, फाई को विद रिस्पेक्ट टू आई डिफरेंशिएट करो, j बार, फाई को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करो, k बार, एंड नाउ कैलकुलेट दिस वेक्टर एट पॉइंट 101, 101, so that is so y0, तो यहाँ पे y है ही नहीं, so 2m I plus j plus k, and now this vector is perpendicular to this vector b bar, so which is 2i bar plus 3j bar minus k bar, and now these two vectors are perpendicular, means what their dot product is 0, means what their dot product is 0, तो क्या आता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2m into 2 plus 3 minus 1 equal to 0. Yes, that is 4m. Okay, 3 minus 2 is 2. That is become minus 2. So that implies m is equal to, मैच नहीं कर रहा है क्या? क्या रॉन्ग हो रहा है? I think okay. Sign कहाँ पे? 101 में, यहाँ पे ये y है ही नहीं ना, यहाँ पे वैल्यू डाले आप पुट कर सकते हो ना, y है ही नहीं तो y कहाँ पे डालोगे आप, y 0 रहेगा ही नहीं यहाँ पे, सो इट लुक लाइक -1/2, चेक करो बार कैलकुलेशन करेक्ट है या कहीं पे रॉन्ग है तो मुझे बोल दो, एनीवन प्लीज चेक दिस, सॉल्व करो, अगर करेक्ट है तो फिर उसको ऑप्शन नहीं रॉन्ग होगा, फिर चेक करो अगर कहाँ पे मिस्टेक है तो बोलो, माइनस हो जाता है ना, ओके, आप प्लीज करेक्ट करो इसको, अगर अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे बोलो, सो राइट नाउ इट लुक लाइक दैट आंसर मस्ट बी -1/2, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है ऑप्शंस में भी, तो अगर एक और बार आप चेक करके देखो, ठीक है, इसको प्लस करने के लिए ना ये साइन प्लस चाहिए था, नहीं नहीं तो भी माइनस ही आएगा ना, ठीक है, सो दैट मस्ट बी माइनस साइन, ओके, नेक्स्ट डाइवर्जेंस, डेल डॉट एफ बार की डेफिनेशन पहले बोलो क्या है, व्हाट इज डेल डॉट एफ बार, डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, यस, व्हाट इज डेल डॉट एफ बार, this is called as divergence of a vector denoted by div of, yes, tell me definition first. Y double z, okay, so it's simply f1 का with respect to x, अब ये स्केलर वैल्यू आती है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर, सो f1 का with respect to x, f2 का with respect to y, f3 का with respect to z, अभी डायरेक्टली लिखो, सो हियर दैट विल बी इक्वल टू, f1 मतलब i बार का कोएफिशिएंट, इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करो, 2xy प्लस विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड को, विद रिस्पेक्ट टू z थर्ड को 2zx, हाँ, that become del dot f bar and calculate this value at 1 to 1, so which option is हाँ, ये आ रहा है क्या, ऑप्शन सी, सो चेक करो, जस्ट पुट 1 to 1, that is 1 4 and 2, okay, z is 1, ठीक है, next the value of lambda, the value of lambda, so that the vector field u bar is solenoidal, so what is meant by solenoidal, so this divergence is 0, that is del dot f bar is 0, हाँ, तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो अभी यहाँ से, f1 f2 f3 आपके सामने है, ठीक है, f1 विद रिस्पेक्ट टू x इज जस्ट द 2 प्लस f2 विद रिस्पेक्ट टू y इट इज जस्ट 4, with respect to z it is minus
lambda and it is equal to 0. So what is lambda? 1. ठीक है, 1. ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, मैंने मतलब सिमिलर क्वेश्चन को स्किप किया, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर एट पॉइंट डेल क्रॉस एफ बार कैलकुलेट करना है। दैट डेफिनेशन को बताइए, आई बार जे बार के बार, देन इन नेक्स्ट रो डबा बाय डबा एक्स, डबा बाय डबा वाई, डबा बाय डबा जेड, एंड इन थर्ड रो the coefficient of f bar, that is f1, f2 and f3. okay, इसका भी करके जाना होगा तो ही समझ में आएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, सो डू दैट। सो आई बार जे बार एक कर लेते, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज एज इट इज, डबा बाय डबा एक्स, डबा बाय डबा वाई, डबा बाय डबा जेड, f1 is x square y, x y z, z square y, z square y. Now tell me, okay, so I bar कोएफिशिएंट, ओके, इसको y से डिफरेंशिएट करना है, दैट इज z स्क्वायर, माइनस इसको z से करना है एक्स वाई। जस्ट 1 मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ये आपसे शेयर करता हूं तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड, हाँ, सो इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड दैट इज एक्स वाई। चलो ये हो गया। नाउ माइनस जे, माइनस जे ये डिलीट करना है, इसका x से 0, इसका z से 0 प्लस के, इसका x से y माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। टेल मी दैट आंसर। x इक्वल टू 0, z इज 2, सो 4i बार है ना, 4i प्लस 2k बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं वहां पे, यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट में क्या दिया है, इरोटेशनल दिया है। ठीक है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस डेल क्रॉस एफ बार टू बी 0। अब ये मैं स्किप करने वाला। यू हैव टू कंसीडर डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0, सेम मतलब अभी यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 0 कंसीडर करो। ठीक है, एंड देन फ्रॉम दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ये तो कर लेते हैं ये, क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंपेयर कैसे करना है। ओके, सो कर लेते हैं, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखो, मैं आपके पास ऊपर रिजल्ट लिखा है, यही आपको एग्जाम में भी करना है। अगर आपने ऊपर ये लिखा है ना फॉर्मूला, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कहीं पे तो चाहिए ना वो सामने। ठीक है, नाउ आप बोलो मुझे क्या क्या लिखना है। आई बार इन ब्रैकेट व्हाट, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3। ये फॉर्मूला रेफर करो बस। आई बार के ब्रैकेट में क्या होता है, f3 को किससे डिफरेंशिएट करना है, f3 को y से, को y से करो, क्या मिलता है -1, माइनस f2 को करना है z से -1। ठीक है, ये हो गया माइनस जे बार। जे बार के अंदर क्या आएगा, f3 को करना है x से, f3 को करना है 4, हाँ, माइनस f1 को करना है z से, f2 ए ना, प्लस 2 प्लस ए, 2 प्लस ए नहीं, z का एक ही टर्म है ना, नहीं ओनली ए। ठीक है, हाँ, ओके, देन प्लस के बार। नाउ f2 को करना है x से, f2 को f1 को करना है y से 2, so it is 0 and that value is 0। ठीक है, yeah, so can you tell me what is that final answer? यहाँ से ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 बन जाएगा। बेसिकली हियर यू विल गेट माइनस जे बार माइनस ए इक्वल टू 0। बट ये याद रखो, वेक्टर इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, यस स्केलर। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 4। ओके, हाउ यू कम व्हाट इफ आई राइट दिस a1 i बार, मुझे इसका आंसर बोलो क्या है, a2 j बार, a3 k बार। अगर मैं इक्वल टू 0 लिखता हूँ, व्हाट दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ।
A1, A2 A1, A2 equals and to A3 हाँ, 0. both ये are याद रखो, दैट simultaneously इंप्लाइज 0. A1 इज 0, A2 इज 0 एंड A3 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहीं पे देख के आपको पता है कि इस टर्म में ही A आ रहा है, सो 4 माइनस A 0 ही होगा, दैट इंप्लाइज A इक्वल टू 4। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ से 3 इक्वेशन जनरेट हो जाते हैं, उनका भी यूज करके आगे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ वी आर वेरी क्लोज। सो U बार इज दिस, फाई इज दिस, U बार हाँ ये थोड़ा अलग है। बोलो U बार डॉट डेल, पहले मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। U बार डॉट डेल, ये ब्रैकेट में है और बाहर फाई। बोलो फर्स्ट टेल में व्हाट इज U बार डॉट डेल इन वन, व्हाट इज U बार डॉट डेल। डॉट प्रोडक्ट में आप कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट लेते हो, करेक्ट है। हाँ, तो प्रोडक्ट लेते समय यहाँ पे मुझे क्या लिखना है बोलो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई आई बार प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब जे बार माइनस 3 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर dot with, remember you can't change a dot, or this dot product is not commutative if one of the vector is operator। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार करेक्ट है, बट अगर मैं इनमें से अगर कोई भी एक वेक्टर आपका ऑपरेटर आ जाता है लाइक से डेल, देन दिस इज नॉट ट्रू, दैट दिस इज नॉट इक्वल, मींस ए बार डॉट डेल इज नॉट इक्वल टू डेल डॉट ए बार। दिस रिजल्ट इज ट्रू only when your both vectors are constant vector, here this is the operator। ठीक है, now here so here you can't change this sequence। यहाँ पे गलती से भी डेल डॉट यू बार कैलकुलेट मत करो, विच इज टोटली रॉन्ग। तो इंटू डाबा बाय एक्स आई बार डाबा बाय जे बार डाबा बाय डाबा जेड के बार, ये हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। फाइव क्या गिवन है, वाई जेड। नाउ टेल मी क्या लिखना है मुझे आगे। 2x 2y minus 6 अभी इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना, दिस इनटू दिस। ठीक है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट होता है, बट कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट लेते समय ये पहले आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये पहले था एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये आ जाएगा डाबा बाय डाबा एक्स। ठीक है, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं, बाहर का वैसे रखते हैं। नेक्स्ट वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डाबा बाय डाबा वाई माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर डाबा बाय डाबा जेड, एंड फिर बाहर आपका क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड। अभी वन बाय वन आप मल्टीप्लाई भी करो। अभी तो अभी वन बाय वन अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। मैं एक बार लिख लेता हूँ, चले जाने का, अभी ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, सो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। आप मुझे डायरेक्टली फाइनल आंसर रेडी करके रखो, डाबा बाय डाबा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड माइनस 3 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डाबा बाय डाबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसको एक्स से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x y z। सो फाइनल आंसर इज 2x क्यूब वाई स्क्वायर जेड, और फिर उसमें 1 to 1 पुट करना है। प्लीज कंप्लीट दिस और मुझे फाइनल आंसर बोलो। आई विल वेट, कंप्लीट करो, मुझे बोलो क्या आंसर आता है। ये करना होगा, कोई चॉइस नहीं है, इतना लेंदी नहीं आना चाहिए बट so this is 2x cube y square z प्लस नेक्स्ट में क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब y 1 हो रहा है ना, y 1 हो रहा है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5। मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है ये, एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 5। 6 ठीक है, एक्स रेस टू 5 देन 6 है ना, ओके मैच हो रहा है, देन इट्स फाइन। सो 5 स्क्वायर एंड देन z। ठीक है, और फिर
अभी लिख लेता हूँ, इतना यहाँ तक किया है मैंने। सो -3 ना विद रिस्पेक्ट टू जेड, Z1 हो गया -3x⁴, -3x⁴, Z1 है y इंटू जेड, सो y एज इट इज एंड Z²। तो इसमें आपको 1 to 1 पुट करना है, सो दैट आंसर इज 6। ओके, प्लीज वेरीफाई दिस। ये मैच हो रहा Yes, तो sir. ठीक है. ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सो इट इज ट्रिवियल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। डेल यू कैलकुलेट करना है, डेल वी कैलकुलेट करना है, डेल डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। मैं कोई भी एक आपको दे देता हूँ। डेल यू क्या होता है, नाउ इट्स अ डेल विद स्केलर, तो ये क्या होता है, दिस इज ग्रेड फाई। ग्रेड फाई कैसे कैलकुलेट करना है, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई बार, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे बार, यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के बार। ओके, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट डेल वी, ठीक है, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई बार, ऐसा ही है ना, क्या कुछ तो रॉन्ग कर रहा हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट टू वाई जे बार एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड है ही नहीं, ठीक है। सो डेल डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस, ओके इतना ही है, -2x आई बार विद रिस्पेक्ट टू वाई टू जेड। ये सॉरी रॉन्ग लिखा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स कैसे आएगा, -2z था वो, हाँ। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज -2z आई बार, विद रिस्पेक्ट टू वाई इज -j बार एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, हाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड में सारे आ रहे हैं ना, सो -2x -2y, करेक्ट है ना ये, इज दिस करेक्ट और नॉट, विद रिस्पेक्ट टू जेड में फर्स्ट Yes, को, sir. फर्स्ट टर्म भी आ रहा है ना -2x, यहाँ पे -2y और यहाँ पे -2z। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट टेक दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये फिर आपको डिटरमिनेंट से आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस सरफेस, वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर बाद में देखते हैं। जस्ट टेल मी अ वेक्टर व्हिच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। सरफेस क्या गिवन है, पाई इज इक्वल टू x² प्लस y² -9। व्हाट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट, क्या होता है वो, Del of phi at P. वेरी गुड, डेल फाई इज एक्चुअली गिव्स द नॉर्मल सरफेस टू दिस, एंड आपको किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, 1 to 1, 1 to 2। कैन यू टेल मी डायरेक्टली क्या आएगा वो, 1 to 2, हाँ। तो फर्स्ट क्या आएगा पहले, नहीं नहीं, ये वेक्टर क्या आएगा, डेल फाई एट 1 to 1, 1, इसको x से डिफरेंशिएट करना है, 2x आ जाएगा, x इक्वल टू 1 है, सो इट इज 2 आई बार प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करो 2y आ जाएगा, बट y 4j, z से डिफरेंशिएट करो 2z, बट दिस इज 4, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, सो डेल फाई का यूनिट वेक्टर एट 1 to 2 क्या है वो, दैट सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस। तो ये मैच कहाँ पे कर रही है, ओके लिख लेता हूँ मैं, 2 आई बार 4j बार प्लस 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 6, सो या यही करेक्ट है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू दिस कर्व Yes, sir. में कर सकते हैं। पहले आपको टेंजेंट टू द कर्व पता होना चाहिए, तो अभी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, बाद में आप करो। सो यहाँ पे आर बार क्या होता है, एक्स आई बार, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट आता है तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखो, ये याद रखो, एंड देन योर टेंजेंट वेक्टर इज डी आर बाय डी टी। तो ये टेंजेंट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू पाई बाय 4, फिर उसके बाद आपको इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस कैन आई स्किप दिस, ये हो जाएगा आपसे, सिंपल डेरिवेटिव, Yes, sir. cos t cos का माइनस साइन टी का 1 टू पाई बाय 4 करो, जस्ट टेक द यूनिट वेक्टर, सो इट्स अ ट्रिवियल, ठीक है। हाँ, ये बाद में करते हैं, ये सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केसेस है जो आपको मैंने पहले बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। हाँ, तो आपको चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो पहले मुझे ये बोलो व्हाट इज द वेक्टर इन द
डायरेक्शन ऑफ line, straight line actually, so straight line, x minus alpha upon a, y minus beta upon b, z minus gamma upon c. Along this line, जो वेक्टर होता है, what is that vector? What is the vector along this line? That is my simple question. What is that vector? AI cap plus BJ So BJ that cap vector plus K cap. AI बार नीचे के नंबर्स लेने प्लस बी जे बार प्लस सी के बार. तो इस केस में क्या होगा आपका आंसर? हाँ करेक्ट. तो यहाँ पे ये 2 को आपको नीचे एडजस्ट करना था. सो जस्ट डिवाइड दिस बाय 2. सो दिस बिकम x माइनस 2. अभी 2 से डिवाइड करा तो इसके नीचे 1 आ जाएगा. इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट आंसर इज i बार प्लस 2j बार प्लस 2k बार. ठीक है. एंड उसका यूनिट वेक्टर तो डिवाइडेड बाय 3. So which option is correct? I think this, no? Next, unit vector along the line equally inclined with all three coordinate axes. So tell me a vector which is equally inclined with all three vectors, all three axes. I plus j plus k. हाँ, ये याद रखो. So this is the vector which is equally inclined with all three axes. And उसका मॉडुलस आता है ये. Sorry, उसका ऑप्शन है. I think only 2 questions are remaining after this. Directional derivative at this point in the direction of this. तो ये मेरे मतलब ये टोटल थियरी क्वेश्चन ही है. डेल फाई कैलकुलेट करो at 2 1 3, then take a dot product with u in the direction of this vector. मतलब u cap लेना है. This is your final answer. Don't take a direct product with this vector. इसका यूनिट वेक्टर लेके आपको प्रोडक्ट लेना है. ठीक है. So this is the directional derivative of this phi at this point in the direction of this. That is del phi dot product with u cap. ये theory question है and you can easily solve this. ठीक है. ये आपको लेवल 3 के क्वेश्चन रहेंगे अगर एग्जाम में आ भी जाते ना, ऐसे क्वेश्चन है. ठीक है. तो जो एक्चुअली मैसेज मुझे जो मिला था आपके इनसेम एग्जाम में, ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि आपको डोंट जज अ क्वेश्चन बाय देयर मार्क्स. नहीं तो आप टोटली रॉन्ग डायरेक्शन से जा रहे हो प्रिपरेशन आपका. यहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क की लॉजिक ही नहीं है. ओके. यहाँ पे फाइनल एग्जाम में आपको लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आने वाले. अगर वहां पे 60 क्वेश्चन है, ओके, सो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आर ऑफ लेवल 1 जो ट्रिवियल है, आपको बस देख के टिक करना है. देयर आर 25 क्वेश्चंस व्हिच आर लेवल 2. इसमें एक स्टेप का कैलकुलेशन होगा या 1 स्टेप में कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा. एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ लेवल 3 जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. लेवल 3 में आपको आपका क्या स्पीड है उस पर डिपेंड है. ठीक है. तो इसलिए वो 50 जो क्वेश्चन है ना, आपको मिनिमम 50 अटेम्प्ट करने हैं. दैट इज इन योर हैंड. ठीक है. तो ये आपको अगर समझ में आता है कि मैं अभी राइट नाउ विच क्वेश्चन आई हैव टू स्किप एंड विच क्वेश्चन आई हैव टू अटेम्प्ट, तो आपका ऑटोमेटिक वो जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन है वो इनिशियली स्किप हो जाएंगे. विद इन टाइम आप वो 50 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे. अगर आपके पास 5-6 मिनट टाइम भी रहता है, देन यू कैन सॉल्व दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो ये आपको टैकल करना होगा फाइनल एग्जाम में. And now the next question is for what मैथ्स में 30 क्वेश्चन है. दिस इज फॉर इन जनरल में बोलता हूँ. मैथ्स में देयर आर ओनली 30 क्वेश्चन, तो उसमें 25 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है. और उसमें भी लेवल रहेंगे. अभी 25 क्वेश्चन में मैं एग्जैक्ट काउंट आपको बोलता हूँ क्या है, बट उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के हिसाब से रहेंगे. ओके. जिससे मैंने 60 को डिवाइड किया था वैसे आप इसको डिवाइड करो. तो अराउंड 12 है ना. 12 आप कंसिडर करो. देयर आर 12 क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ लेवल 1, 12 क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 एंड रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन है दैट इज ऑफ लेवल 3. ऐसे टाइप के आपको रहेंगे. ठीक है. मैथ्स में अभी तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, बट अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको 30 ही क्वेश्चन आने वाले. 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन रहेंगे. ओके. इमेज सारे क्वेश्चन आपके इमेजेस फॉर्म में ही है वहां पे. तो जिस फॉर्म में मैंने आपकी एग्जाम ली थी सेम पैटर्न आपका वहीं पे होगा. ठीक है. इमेजेस के फॉर्म में एग्जाम होगी, इसलिए आपका नेटवर्क प्रॉपर चाहिए, तो वो सारे इमेज इजीली आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके.
इतना भी स्ट्रांग नहीं, बट एक प्रॉपर नेटवर्क में आपको रहना होगा। अगर आपको मैथ्स पेपर में, मैथ्स के इनसे में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में तो 100% नहीं आएगी, ठीक है। बट सेम पैटर्न होगा जैसे हमने इनसेम कंडक्ट की थी, उसी हिसाब से आपको जाना है। बट वहां पे क्या होगा कि वेटेज इंप्रूव किया है उन्होंने, वेटेज डायरेक्टली 2 मार्क्स का किया। तो लेवल 1 जो 1 मार्क के भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ट्रिवियल है, इतना ट्रिवियल कि बस देख के आप टिक कर सकते हो, उनका भी वेटेज 2 मार्क्स का है, लेवल 2 का भी 2 मार्क्स का, लेवल 3 का भी 2 मार्क्स का। तो उसमें से उस 25 या उस 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, अराउंड 25 या 24 क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे रहेंगे जो आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो। अराउंड 25 आप कंसिडर करो, ओके, जिसमें विद इन 1 स्टेप कैलकुलेशन हो गया, विदाउट कैलकुलेशन होगा क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जिसमें सच में आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये आपको पहले ही दिमाग में रख के पेपर कंप्लीट करना है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो, आपको विद इन अ टाइम आपको 30 क्वेश्चन पे आना है। जब तक मतलब ये होता है तो ही आपका पेपर अच्छे से कवर होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन थे वो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। Now for what values of ABC the directional derivative phi at this point has a maximum magnitude that is 4 in the direction of parallel to x-axis, ठीक है। वो वेक्टर आपको गिवन है, this vector has a maximum magnitude in the direction of a vector which is parallel to x-axis and that magnitude is 4। फिर से बोल रहा हूं, this vector has a similar magnitude, this vector has a similar magnitude in a direction along a vector, okay, which is parallel to x-axis. So there is a vector which is and whose modulus is 4. Okay, can you tell me that vector? Tell me a vector. So I just want a vector which is parallel to x-axis and that and the modulus. Along x-axis आपको वेक्टर चाहिए, मतलब y0 z0 एंड मैग्नीट्यूड आपको 4 लेना है। अब चेक करो, दिस इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज अगेन 4। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस गिवन वेक्टर जो उन्होंने दिया, सी आई बार प्लस ए प्लस बी जे बार plus b plus c k bar. So these two vectors are equal. Now if two vectors are equal, then their corresponding elements are the same. So a plus c must be 4, a plus b must be 0 and b plus c must be 0. Okay, so which option is correct? आप ये पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कहाँ पे मैच कर रहा है, a plus c 4 कहाँ पे आ रहा है? सी ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आप चेक करो, ये पे a plus c 0 हो रहा है, a plus b भी 0, a plus c 4 आ रहा है, a plus b 0 आ रहा है, b plus c भी 0 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन आप याद रखो। एक और मैं ले लेता हूँ सिमिलर टाइप का। यहाँ पे देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर एट दिस पॉइंट, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल फाई एट 1 2 0। आप अभी डायरेक्टली बोलो, आपको अभी ठीक है, अभी थोड़ा टाइम जाएगा। सो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट डेल फाई, पाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई प्लस जेड I bar with respect to y, x plus z, j bar with respect to z, it must be x plus y, ठीक है, with respect to y, with respect to x, ठीक है, k bar and calculate this value at 1 2 0। क्या मिलेगा ये, x is 1, ए ऑप्शन, y is 2, z is 0, so 2 I bar, okay, x is 1, z is 0, so j bar plus x is 1, y is 2, 3 k bar, and this vector has magnitude, or this vector is has a maximum value, sorry, yeah, the question has a maximum value in the direction of what? बोलो, डेल फाई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में आता है? Del phi. डेल फाई का Del डायरेक्शन phi. में आता है, सो हैज अ मैक्सिमम वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ। तो इसी डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2 i bar plus j bar plus 3 k bar, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 2 अलोंग x एक्सिस। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वेक्टर एंड अ वेक्टर अलोंग x एक्सिस विद मैग्नीट्यूड 2, ये दोनों सिमिलर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वेक्टर दैट इज डेल फाई, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है तो रैंडम ले लेता हूं। डेल फाई क्या होगा, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए आई बार, फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जे बार का कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है, एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड 2, तो आई बार का कोएफिशिएंट वो 2 लेना है, वो जो भी मॉडुलस है वो उसका कोएफिशिएंट आपको लेना है, ठीक है। नाउ यू कैन चेक दिस इज द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड 2। नाउ कंपेयर करके आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने से 2 बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, हाउ मेनी आर रिमेनिंग, ओके सो ओनली 3 आर रिमेनिंग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 103, ये आपको अभी समझ में आएगा। दैट आंसर इज डेल फाई एट 103, इसका मॉड्यूलस ये जो भी है वो आपका फाइनल आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आती है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन सरफेसेस पाई एंड साई एट दिस पॉइंट, कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपको उन एंगल बिटवीन टू सरफेस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एट अ पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, यस, Dot product upon it magnitude is of nothing but the product of magnitude. angle between two normals at that point. It is nothing but angle between two normals at that point. तो वो नॉर्मल आपको गिवन है, डेल फाई भी गिवन है, डेल साई भी गिवन है, ठीक है। आपको बस ये दोनों वैल्यूज 111 पॉइंट पे कैलकुलेट करने, तो जस्ट कैलकुलेट डेल फाई एट पॉइंट 111 which is log 1 is 0, so minus 2 j bar plus k bar, okay, then del psi 111, it is 2 I bar plus j bar plus k bar, and now just calculate the angle between this, ठीक है। क्या आ रहा है बोलो अगर किसने किया तो, d ना, ओके, दैट वैल्यू d या b, b, ओके, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, वो क्या आएगा, ठीक है, अभी माइनस में दिया तो रहने दो, चलो, okay, and then last question, okay, from this section. Again we have given two surfaces, these two surfaces are orthogonal at this point, then a is equal to what? तो क्या करना होगा बोलो, क्या करना होगा? Del phi 1 and del del phi 1 कैलकुलेट करो, that is with respect to x I bar, with respect to y j bar, okay, with respect to z k bar, and calculate this value 111, that is I bar j bar plus k bar, and then next is del phi 2 with respect to x 2x I bar 2ay j bar plus 2z, हाँ, okay, हाँ, so del phi 2 at 111, so it is 2 plus 2a j bar plus 2 k bar. Now these two normals are orthogonal मतलब perpendicular, so their angle between these two vectors is 0, so their dot product is 0 basically, this the dot product is 0. What this implies, 1 into 2 is just a 2 plus 1 into 2a is just a 2a plus 2 is equal to 0, that is a is equal to minus 4 by 2 minus 2, ठीक है, okay, and I think that is all about, okay, one ये मैं शेयर कर देता हूँ, एंड वन पार्ट इज रिमेनिंग नाउ, वेक्टर आइडेंटिटीज, ओके, वो पार्ट आपका रिमेनिंग है। सो ठीक है, अभी के लिए तो ये पे स्टॉप कर लेते हैं, एंड देन मुझे जैसे टाइम मिलता है आई विल टेक दैट नेक्स्ट पार्ट। तब तक आपको जितना हो रहा है आप उतना कंटिन्यू करो। आप क्वेश्चन नंबर, ओके, मैं उस पर जाता हूँ। और कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, मुझे पहले वो क्लियर करो, सो दैट आई कैन मैनेज दोज लेक्चर्स, okay, civil and ENTC students, okay, is there any doubt in any other topic now, या और ऐसा कोई यूनिट है जिसकी रिवीजन आपको लेनी है? ENTC में थर्ड यूनिट ट्रिवियल है, यूनिट 1 यूनिट 2 का तो अभी आपने ऑलमोस्ट किया है,
थर्ड यूनिट दोनों ब्रांचेस में ट्रिवियल है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के मैं एमसीक्यूज की रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर सकता हूँ इफ यू वांट, ओके, क्योंकि अभी के जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग आल्सो यू कैन फाइंड आंसर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम निराली, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे निराली के क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए। प्रोबेबिलिटी में भी बायनोमियल हो चुका है, पॉइजन हो चुका है, नॉर्मल पेंडिंग है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो भी रेडीमेड रिकॉर्डिंग है, सारे एमसीक्यूज वहां पे सॉल्व, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट आल्सो। तो वो एक यूनिट आपका हो जाएगा वहां से, ठीक है। अभी ये एक यूनिट था जिसमें फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नाउ दिस आर द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर ओनली द वेक्टर आइडेंटिटीज वेयर वी नीड सम टाइम, ठीक है। तो उससे पहले आप बाकी सारे टॉपिक्स कवर करो, ठीक है। सो दैट रिवीजन आई विल टेक सम अदर डे, देखता हूं अभी कौन सा शेड्यूल मिलता है। इसके अलावा किसी और टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप बोलो, सो दैट आई कैन शेड्यूल दैट लेक्चर आल्सो। फ्रॉम सिविल 5 यूनिट 6 में वो जो यूनिट 5 कौन सा है आपका, ओके, वेक्टर का ही है, स्टोक्स थ्योरम, वो उसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं आने वाला, बट यू वांट विल टेक दैट रिवीजन, ठीक है। अभी यूनिट 6 बस दोनों इसमें अलग अलग है। अभी सिविल में यूनिट 6 की रिवीजन की जरूरत नहीं होगी, ओके। आपको भी पता है उसमें क्या प्रिपेयर करना है, ओके। उस हिसाब से बस वो 3 थ्योरम्स आप प्रिपेयर करो, ओके। एंड यूनिट 5 का जो होगा, ओके, यूनिट 5 की मैं रिवीजन ले लेता हूँ फिर, ठीक है। एंड फॉर सिविल आई विल, फॉर ईएनटी से आई विल टेक फॉर यूनिट 6 आल्सो, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेस तो एटलीस्ट रिवाइज करके हम जा सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट फ्रॉम ईएनटी से स्टूडेंट्स ओनली, ओके, ठीक है। और कुछ भी टॉपिक से तो आप मुझे बोलो, या आप चाहो तो मुझे क्वेश्चन शेयर करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हार्डली 3-4 क्वेश्चन में आपको तो आप डायरेक्टली वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस। सिविल आपकी अटेंडेंस जाने वाली है, एंड ईएनटीसी की अटेंडेंस एज एक्स्ट्रा लेक्चर कंसिडर करता हूँ। दिस विल नॉट काउंट इन योर एक्चुअल अटेंडेंस फॉर ईएनटीसी, फॉर ईएनटीसी। सिविल आपकी थियरी अटेंडेंस में जाने वाली है, आप पुट करो प्रॉपर। और ईएनटीसी इट इज नॉट अ कंपल्सरी लेक्चर। हाँ, अभी आप बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वो ओपन नहीं होगी शायद। Okay, is this visible? Okay. हाँ, ओके, हाँ हाँ, इसका मैं आपको बोल देता हूँ। इसका मैंने अभी सोचा था, ओके। द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ सर्टेन फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय these equations, okay, okay, then the directional derivative of phi xy along a direction of the vector I plus j। इसका एक्चुअली फॉर्मूला मुझे देखना होगा एक बार। दिस इज फॉर 2 वेरिएबल, सो आई नीड टू चेक दैट। नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। स्टिल आई नीड टू चेक। एक बार जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगर हो रहा है यहीं पे मैं देख लेता हूँ। वेक्टर I plus j bar, okay, so partial derivative of certain vector, it is not a part of your syllabus, तो वो ये उस सेक्शन में है। I need to check that formula, तो मैं आपको वो चेक करके बोल सकता हूँ। मैंने नहीं चेक किया है वो फॉर्मूला क्या है। अगर आपको पता तो आप बोल दो, हम देख के भी कर सकते हैं। 2 वेरिएबल का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए, तभी ये होगा। ओके, सो आई विल शेयर दिस आंसर, ठीक है। इट इज देयर, इसका आंसर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ प्रॉपर। तो उस पर थियरी भी ऐड करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने लिखा है वहाँ पे।
ओके, विल शेयर दिस, नो प्रॉब्लम। 40, हाँ हाँ, और बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं सुनाई दे रहा है। 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहे हो आप? हाँ, तो इसका भी प्रूफ आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। What I will give you this in detail. Okay. Yes. Any other? ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे या क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इन डिटेल। यस, 41 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अभी वेक्टर आइडेंटिटीज के आप देखो, मैंने भी अभी कुछ ज्यादा सॉल्व करके उसमें नहीं चेक किया है, बट देखो कि कौन सा नहीं आ रहा है वो मुझे बोलो, तो वो मेरे लिए इजी होगा, सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन दोज क्वेश्चंस। मैंने भी चेक नहीं किया, तो आप एक बार सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, या आप चाहो तो इसको लास्ट में रखो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो। विल टेक सम टाइम, टेक सम टाइम, इट्स नॉट दैट मच ट्रिवियल. असं नाही सांगू शकणार, कारण आता तुम्हाला तिथे ना अराउंड 200 की क्वेश्चन बैंक है, तो आपको भी बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले फाइनल एग्जाम में, दो देर आर 30 क्वेश्चंस, बट इट्स मतलब वो हर एक स्टूडेंट को अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फाइनल एग्जाम में, कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट, क्योंकि अब इसमें ये तो सारे है ही वहां पे, ये आप याद रखो, ये सारे ही वहां पे ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सारे ही वहां पे, इसके अलावा भी और बहुत सारे, अराउंड 200 क्वेश्चन सबमिट किए ऑन ईच यूनिट, अराउंड यूनिट 1 यूनिट 2, इट डिपेंड, वैरी भी है, बट क्वेश्चन ज्यादा है यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आप स्किप करके देन यू कैन चेक व्हाट इज द फाइनल काउंट, मतलब आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। यूनिट 1 में से मेरे पास ये 15 क्वेश्चन है, मुझे बस उनको ही सॉल्व करना है, उससे बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इस अकॉर्डिंग आपको आना है। जैसे अभी ये जो मैंने यहाँ पे जो प्रिपेयर किया ना, इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ओके। अभी जो अदर क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के ही है, ओके, तो वो अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे आपको हर एक यूनिट के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, वो काउंट आपके लिए फाइनल प्रिपरेशन का काउंट होगा, वही आपको उस दिन प्रिपेयर करना है जब आपका कल पेपर है, तो अगले दिन या जस्ट 1 डे बिफोर आपको बस उन्हीं क्वेश्चन पे बाउंड रहना है, तो वो काउंट इतना बड़ा नहीं होगा, हार्डली 15 या 20, अराउंड 20 क्वेश्चन ईच यूनिट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन को स्किप करते हो तो, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट फ्रॉम योर साइड, प्लीज चैट बॉक्स। और कुछ डाउट्स है रिलेटेड विद एग्जाम? एक और लेक्चर में लेने वाला, हार्डली इट इज 30 मिनट्स का लेक्चर होगा, ठीक है, बिफोर द एग्जाम, मैं आपको एग्जैक्ट शेड्यूल बोलता हूँ, इसी- हाँ, और उसमें कुछ ट्रिक्स आपको मैं दे देता, बट अभी नहीं, ओके, उस टाइम पे आपको मैं बोल देता और क्या क्या पॉसिबिलिटी से आप जा सकते हो, ठीक है, और उस टाइम पे थोड़े बहुत और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाएगी कि कैसा होगा आपका फाइनल सब्जेक्ट का ये, ठीक है। सो विल टेक दैट लेक्चर, इट्स अराउंड 30 मिनट्स लेक्चर, तो उस टाइम पे आपको मैं बोल देता, बट इट्स बेटर फॉर मैथ्स, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लैपटॉप पे ही पेपर दो या सिस्टम अरेंज करो, दैट इज मच बेटर, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो उस केस में ठीक है, ओके, यू कैन गिव दैट एग्जाम ऑन मोबाइल आल्सो, बट इट्स बेटर टू यूज द लैपटॉप और डेस्कटॉप सिस्टम, वो आपके लिए इजी होगा, कैसे मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है। ओके, okay, so if you don't have any doubt, then you can leave this session.